71 state-wide total incubators. One particularly in apparel incubation, technology incubation centers are there, and agribusiness incubation centers are also there. In MSME policy and startup policy, we normally give capital subsidy in case of MSME policy, financial assistance for quality certification, energy audit, and intellectual property right, etc. In the startup policy, we give seed funding, power concessions, and different other supports. Now, coming to the policies, so we have policies in almost everything, whatever you believe. So there is industrial promotion policy, MSME policy, IT, ITS, ESDM investment policy, health sector investment policy, renewable energy, PSP, ethanol, biofuel, film tourism policy, real estate policy, and this is not a list this list is non-exhaustive. This is not the end of it. And what we give to our investors, we give the investment promotion assistance basically to the plant and machinery. A proportion of that is returned back to the investors. Assistance for infrastructure development, employment generation incentives in some of the sectors, stamp duty and registration fee reimbursement, electricity exemption, assistance for green industrialization, export incentives, and land cost is also very low. We have upcoming policies in global capability center, biotech, EV and AVGC, and green hydrogen. Now, state has a very conducive level of system, and we are the first state in entire country who have the level case management system. We have 43% of our population working age category. For quality certification, energy audit, and intellectual property right, etc. In the startup policy, we give seed funding, power concessions, and different other supports. Now, coming to the policies, so we have policies in almost everything, whatever you believe. So there is industrial promotion policy, MSME policy, IT, ITS, ESDM investment policy, health sector investment policy, renewable energy, PSP, ethanol, biofuel, film tourism policy, real estate policy, and this is not a list this list is non-exhaustive. This is not the end of it. And what we give to our investors, we give the investment promotion assistance basically to the plant and machinery. A proportion of that is returned back to the investors. Assistance for infrastructure development, employment generation incentives in some of the sectors, stamp duty and registration fee reimbursement, electricity exemption, assistance for green industrialization, export incentives, and land cost is also very low. We have upcoming policies in global capability center, biotech, EV and AVGC, and green hydrogen. Now, the state has a very conducive level of system, and we are the first state in entire country who have the level case management system. We have 43% of our population working age category. Of trust everyone has in Madhya Pradesh. Once they come to our place, they know how good we are, how hospitable we are. We are there to help you, we are there to support you. We always work on the Indian philosophy and ethos, survey Sukna. Everyone has to be happy. We always believe in the philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. Entire world is our family. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your engaging presentation. Now, it's my privilege and honor to introduce and welcome a distinguished leader,
a pioneer in advancing technological-driven growth in Madhya Pradesh, Mr. Sanjay Dubai, the Additional Chief Secretary of the Department of Science and Technology, Government of Madhya Pradesh. Mr. Dubai's vast expertise and forward-thinking approach have been instrumental in positioning Madhya Pradesh as a rising powerhouse in the domains of IT, ITES and ESDM. Under his visionary leadership, the state has witnessed significant strides in innovation, digital transformation, and fostering a conducive environment for tech-driven industries. Today, we have the unique opportunity to hear from him as he delivers a presentation on the potential and advancements of IT, ITES, and ESDM in Madhya Pradesh. This session promises to shed light on the remarkable opportunities for investors, entrepreneurs, and stakeholders to contribute to and benefit from this thriving sector. के लिए जो डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश निकल के आ रहा है, इसके बारे में तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी बात होने के बाद अभी कुछ बची होगी। जिस क्रम में जिस प्रकार से बात रखी है, और ये बात तो बदलते दौर में अब दुनिया के सामने स्पष्ट हुआ है। यशस्वी प्रधानमंत्री के विजनरी व्यक्तित्व के आधार पर हम सब आज जिस दौर में बैठे हैं, अधिकांश भरतवंशी हैं। हम सबका अंतर्मन और वो दौर भी याद होगा 10-20 साल पहले का भारत और आज का भारत। केवल 2014 के बाद से किस प्रकार से एक देश और इस प्रकार की विविधता वाला देश, इतने प्रकार की चुनौतियां, नाना प्रकार के वातावरण और सभी प्रकार के मौसम के कई सारी होनी अनहोनी घटनाओं के बीच, लेकिन इंग्लैंड की और भारत की कई साझी विरासत भी है। और साझी विरासत हमारी राजनीतिक परिस्थितियां, लेकिन उसमें लोकतंत्र का गौरव भी है, जो इंग्लैंड में भी है और भारत में भी है। इंग्लैंड हमारे अपनी विरासत के काल में हमारे तरफ अगर आकर्षित हुआ था तो वो भी व्यापार व्यवसाय कारण था, और उस व्यापार व्यवसाय के आधार पर इंग्लैंड ने अपनी गति प्रगति की है। लेकिन उन गति प्रगति के बाद, जब देश की आज़ादी के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से अभी वर्तमान के माहौल में, और हम सब ये कई सारे घटनाक्रम देखेंगे तो ध्यान में आएगा, कोविड की कठिन काल में ये उदाहरण हम सबके सामने, ऐसी भयावह बीमारी में इतने प्रकार की, जिसमें हेल्थ को लेकर कितनी चुनौतियां थी मध्य प्रदेश और पूरे देश में, लेकिन जो उनका नवाचार करने का और नवोन्मेष की जो प्रकार की उनकी मन की भावना और उस पर पकड़ है। बीमारी भी मालूम नहीं थी, इलाज भी मालूम नहीं था, परिस्थितियां भी नियंत्रण में नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से वो डायनामिक लीडर के नाते से जाने जाते हैं। लॉकडाउन इतने बड़े देश में, जो कभी शब्द की कल्पना करना ही मुश्किल है। कोई एक नगर को लॉकडाउन करते हैं कर्फ्यू में या कभी और प्रकार से, तो हालत खराब हो जाती। लेकिन पूरा देश, क्या रेल, क्या बस, क्या सब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मैं समझता हूं कि वो उनकी विल बताती है कि उनने अपने इस देश को बचाने के लिए जिस प्रकार से काम किया था, और देश को नहीं, दुनिया के सामने भारत का नया चित्र लाने के लिए। और हम सब और सौभाग्यशाली हैं जब जिस प्रकार से वो आज के इस दौर में भी, यद्यपि गुट निरपेक्षता की तो हमारी पहचान ये मान के चलो शब्दों से तो पहले भी थी, लेकिन आज रसिया से, अमेरिका से, चाइना से, यूके से, सबके बीच में अपने देश की पहचान बचाना और उसके बीच विकास का पहिया उस गति से चलाना जिसमें बड़े पैमाने पर सबकी आश्वस्ति भी हो, भरोसा भी हो और गति प्रगति भी हो। आज के इस दौर में मैं ये मान के चलता हूं कि उसी भारत में जहां हम ये मान के चलते थे कि हमारे अवसर कम, इसीलिए तो हम सब लोग भारत से बाहर आकर के आप अपनी अपनी पहचान बनाने में किसी और मार्ग पे आए थे, लेकिन आज आपको अपनी इस व्यवसाय की बढ़ती अपनी रफ्तार में फिर संभावना बड़े पैमाने पर अपने देश में भी है
और मध्य प्रदेश में भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप भी अवसर को देख रहे हो, समझ रहे हो और बड़े पैमाने पे इन व्यवस्थाओं में जुड़ने का एक रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। और जैसे कि अभी हमारे मित्रों ने कहा, सरकार के लेवल पे भी सारी सुव्यवस्थाओं के आधार पर परिस्थितियों में भी नियंत्रण है, शासन में भी पारदर्शिता है, स्पष्टता भी है, संभावना भी है और उससे बढ़कर के पॉलिसियां भी है। हमारी इस व्यापार व्यवसाय की एक बड़ी आश्वस्ति इसी प्रकार की है कि हमारी राजनीतिक स्थायित्वता की भी भावना है। अभी कहीं कोई आपको डाउट नहीं हो सकता। हमसे ज्यादा आप जानते हो कि जिस प्रकार का अभी राजनीतिक नेतृत्व स्थायित्व वाला पूरे देश का है और उसके भरोसे से कई सारी परिस्थितियों के बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री का चमत्कारी नेतृत्व है और आप उससे बढ़कर के उनकी साफ गोई भी है कि अगर एक बार कह दिया तो आप में से सब जानते, दुनिया इधर से उधर हो जाए बात बदलती नहीं। जिस प्रकार से वो अपनी बात को रखते हैं और हम सब, मैं एक राज्य का मुखिया होने के नाते से कह सकता हूं कि राज्य के मुखिया को अगर ये महसूस होता है कि इतनी सारी चुनौतियों में अपना स्थायित्व कैसे चाहिए, तो सबसे बड़ा आधार उसका केंद्र होता है और केंद्र में इस बात की गारंटी रहती कि कोई बात नहीं, अच्छा निर्णय कर लिया, बढ़ो आगे, हम सब देख लेंगे। तो खाली शब्द नहीं है, वो एवरेस्ट से ऊंची चट्टान की तरह उनका आश्वस्ति है कि हाँ वो जो कह रहे हैं उसमें कोई भी चिंता नहीं होती। और व्यापार व्यवसाय को क्या चाहिए, यही तो चाहिए। अन्यथा तो दुनिया के आसपास में आप भी देख रहे हो, जो आहट यूरोप में आ रही है वो एशिया में भी दिखाई दे रही है। व्यापार व्यवसाय ऐसी भयावहता के बीच में नहीं बढ़ सकता, लेकिन ऐसी भयावहता के बीच में भी व्यापार भी बढ़ रहा है और आश्वस्ति भी बढ़ रही है। और शांति की अगर कहीं से आहट आ रही है तो शांति की आहट भी उसी देश से आ रही है, जिसके कारण से उस देश की धाक भी है और साख भी है। वो हमें इस बात का एहसास करा रहा है कि आज सारी चीजों का समाधान अगर कहीं है तो निश्चित रूप से वो सारे प्रश्नों का, उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर केवल एक, हम सब मिलकर के आज के इस दौर में, जब मैं यहाँ यूके के दौरे बनाने की बात कर रहा था तो हम सीधे यहाँ नहीं आए। यहाँ आने के पहले हमने अपने मध्य प्रदेश की सारी व्यवस्थाओं की स्टडी की और अपने देश के अंदर के राज्यों में भी जो इन्वेस्टर हैं उनको भी बुलाने गए और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उसका परिणाम निकला। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य से भी हमारे पास 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्लान, हमारे प्रस्ताव को मंजूर करके मध्य प्रदेश पे आए। कोयम्बटूर, तमिलनाडु वैसे ही उद्योग व्यापार के लिए अच्छा जाना जाता है, लेकिन रेडीमेड गारमेंट से लेकर कई प्रकार की चीजों का, और माइनिंग में हम देश में नंबर 1 आए। अपनी खदानों का साफ सुथरे ढंग से नीलामी की जो प्रक्रिया हमने अपनाई है वो बड़े पैमाने पर लोगों को आकर्षित कर रही है। और इसीलिए आज मैं यहाँ आपके स्टील किंग मित्तल जी से भी मिला तो उन्होंने भी यहाँ से उस बात को महसूस किया है कि हम भी चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश आए। तो जब आने वाले लोग आ रहे हैं अच्छे ढंग से, तो इसीलिए आज की स्थिति में कल से आज तक आपके बीच में हूँ और रात को भी देखा, अलग अलग सवेरे भी कई प्रकार के लोगों से मिलने का मौका मिला है। बड़े पैमानों पर सब लोगों ने रुचि भी दिखाई है और नई टेक्नोलॉजी, खास करके हमारे पास इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा आधार भी है। इसलिए आपकी नई टेक्नोलॉजी का हमारे अपने प्रदेश में भी स्वागत है, अभिनंदन है। और जिस प्रकार से अब आप लैंड बैंक की बात मेरे मित्रों ने बताई है, दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा कि आज जमीन की जो उपलब्धता मध्य प्रदेश में है वो महाराष्ट्र में नहीं है। कोयम्बटूर से लेकर बंगाल तक में जिस बात का अभाव है, एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बाकी चीजों में भी जिस प्रकार की अनुकूलता है। फूड इंडस्ट्री के मसले पे कल ही बताया मुझे कि यहाँ बड़े पैमाने पर हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है उसके आधार पर बड़ी संभावना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब इतनी सारी संभावना है तो हमारी आज की इस बिजनेस के इस वातावरण में उसका कोई सार्थक परिणाम निकलेगा और उससे बढ़कर के सारी पॉलिसियां सभी सेक्टर में साफ सुथरे ढंग से, लेकिन इन पॉलिसियों से आगे बढ़कर आज हीरा चंदानी जी बहुत अच्छी बात बोला, वही थे ना सवेरे, हीरानंदानी जी। मैं भी बड़ा उनके उस प्रश्न के उत्तर से बड़ा आनंदित था
हमारे अधिकारियों ने कहा कि हम तो हिरन अंदानी जी की पहचान तो रियल एस्टेट की है। जब वो सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे तो हमारे अधिकारी ने धीरे से पूछा कि आपने इस सेमीकंडक्टर में मन कैसे बनाया? तो उन्होंने कहा मन नहीं बनाया, मैं उसको बहुत देर तक समझ के आया हूँ, बड़ी संभावना अगर है तो सेमीकंडक्टर की चिप में भी है। और इसलिए जब उन्होंने कहा कि आपके यहाँ की कैबिनेट समिति के माध्यम से 100 करोड़ से ऊपर का काम अगर कहोगे तो कैबिनेट से हम उसमें विभिन्न प्रकार के इंसेंटिव देने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा 100 करोड़ तो कम होते, मैं 25,000 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूँ। ये जो बात आती है इसी से तो रास्ते निकलते हैं। मुझे लगता है कि आज के इस माहौल में जब ऐसे सुझाव आते हैं, ऐसी हिम्मत होती है, ऐसे प्रस्ताव आते हैं, तो मुझे लगता है कि आज का अपना समय सार्थक होगा। बड़ी संभावना है मध्य प्रदेश में। आने वाले समय में निश्चित रूप से आप सबको मैं आमंत्रण दे रहा हूं। इन सारी अधिकारियों की बात के बावजूद भी अगर आपके मन में कुछ और शंका हो, कुछ और बात मन में हो जिसको सरकार के लेवल पे हल करना है, इसलिए सरकार के मुखिया होने के नाते मैं स्वयं आपके बीच में भी आया हूं। लेकिन कुल मिलाकर के हम सब मिलकर के हम अपने अपने क्षेत्र में उन्नति करें, मध्य प्रदेश को हम आगे बढ़ाएं, आपके माध्यम से रोजगार भी पाएं और आप अपने व्यवसाय को बढ़ाओ। इस आमंत्रण के साथ एक बार फिर मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।